इसकी सोल्यूस पर सर वो प्ले करते हैं मैं समझ वही मैंने इसीलिए पूछा, लेकिन नाम ही ऐसा रखा है। मैंने ये डिस्कस किया था। अच्छा मैं सोच एक मेंटोर Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salam Saidi and I am here to present Director's Challenge for Vision 2023. The project is on Soul Whisper. In my team, there are my other teammates Farhan Ali and Muhammad Abdullah. So let's get started with the problem statement. Problem statement on number first we have depression. Depression is a mental disorder. According to WHO, 5% adults suffer from depression, in which the rate of women are more than the rate of men, and around 7 lakhs of people died every year because of suicide. And depression is a leading cause for suicide, and suicide is the fourth leading cause for the death. So not only depression, but there are also other problems which is also linked to the mental disorder health, which includes anxiety disorder, trauma and post-traumatic stress disorder, substance abuse and addiction, eating disorder, bipolar disorder, personality disorder, relationship issues, grief and loss, and stress and coping. So we come with a project and named it Soul Whisper, which is a solution for all of these problems. Our platform Soul Whisper provide detailed and reliable information about various health, about their symptoms, about their causes, and also the available treatment in Pakistan, and if it's not available in Pakistan, so internationally. Second thing, our platform provides self-assessment tools and quizzes that help user to understand either it is originally a mental disorder or it is just that workload or other things. Third, we have online therapy. If a user online therapy services, if a user wants to contact face to face, he or she can just book our professional and can meet. But if not, we have online therapy services which can help to perform a meeting digitally. On fourth, we will create comprehensive resource library which includes blogs, posts, articles, and other things which not only users but the students that are also learning psychology or physiocare which also come to our website and learn about these blog posts and articles. After this, we will encourage our user to share their experience, their reviews, their feedback, which will help professional and a victim to make a best understanding and will find a solution for their problem. After this, we will develop some providable worksheets or workbooks that can help for physical exercises or other things. After this, we have section for emergency contact. If a case is serious, so he or she just contact our emergency members, and within a seconds and so our members contact to the victim and help it. उसके बाद user feedbacks and reviews, then privacy and confidentiality. After this, the time comes for our targeted audience, that who are we targeted. So first number goes to individuals seeking therapy. The one person who is going through this mental disorder can contact us and we can help him in that matter. After this, the family members or friends, the person whose family members or friends are in mental health disorder or other type of disorder, he or she just can contact us, and we will this is the things that we are targeting, the person who is going through mental disorders. After this, we have student profession. Not only victim, we are also targeting the professionals like students, doctors, psychiatrists that are doing research on the topics. They come to our website and read blog posts, articles about, and this will help them in their research products. After this, we have general public, and after general public, we have educator and organizations such as NGOs, JDC, Al Khidmat, and ED that are helping in type of these things. After this, we have a section of competitors. In our competitors, there are several websites in Pakistan, but what we are presenting, the websites are not at that level, and there are some features that we are providing, which includes personalized assessment tools. Personalized assessment tools includes the things that quizzes or worksheets that a user can understand that what he or she is going through from.
After this, we have interactive therapy exercise sessions from some professional. It is the sessions that is also digitally, but also face to face. If a user wants to professional to come to our home or can come to our clinic, so we can help him in that matter. After this, we have AI powered chatbots for initial teenage or support. AI is leading right now, so we also integrate AI chatbot in our application. After this, we have partnership and collaboration with mental health organizations. As I said earlier, we will contact to NGOs like ED, JDC, so they have a perfect collaboration of the victim and professional that will help us. After this, we have our business model. So we are making our website, so it is also matter that how we earn from this. So first number is our subscription model. We will apply a subscription model for the premium content or the content that the user want aside from the content that is from free or that is from usual. After this, we will generate revenue through partnerships with mental health organization. The person, the doctor, the psychiatrist that want improve their research can come to our website, pay a fee, and then he or she can access to the advanced research of this topic. After that, we have displayed targeted advertisement or sponsored content. We will target the audience that, as I said earlier, not only victims, but we are also targeting professionals. So we can earn from victims also, and we can earn from professionals also, like doctors and psychiatrists. Then establish partnership with corporation, university organization. The student that is studying in university right now, we can give them a sessions like small sessions and generate revenue through it. Not we will give them sessions about research also and about their improvement of skills also, and we will charge a fee for this. After this, we have our timeline. In our timeline, the most time we spend 13 days on our planning and research. As the Abraham Lincoln, the 13th US president, said, if you give me 6 hours to chop down a tree, I will spend first 4 for sharpening the axe. Because preparation makes success, preparation जो होती है वो success को यकीनी बना देती है. Preparation makes success. After this, we have our 6 days for content creation. We have our 10 days for design, that is front end, and 10 days for our design for our development and functionality, that is back end. After this, we have 5 days testing and quality assurance, and 1 day for launch and deployment. So directors, we are Soul Whisper. We are embracing smile, happiness, and healthy health to the person's social life. So any question you want to ask? मिसेस में आप ने इनको गाइड किया है, उसका किया है. पहले तो खैर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि एट द प्रिलिमिनरी लेवल जो अभी तक आपने प्रेजेंट किया, जो रिसर्च प्रेजेंट की, दैट वाज वेरी गुड. उसको आपने अच्छे से स्टडी किया भी है और उसके डोमेन को भी देखा है, उसकी इनसाइड आउट भी देखा है कि कहाँ क्या काम हो सकता है या क्या काम हो रहा है. तो दैट इज़ वेरी गुड. बेसिकली ये जो एप्लीकेशन होगी या वेबसाइट होगी, इसमें मेरा खुद पर्सनल इंटरेस्ट भी है. बहुत अच्छा एरिया है. अच्छा, इसमें बाकी तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ नोट की. आपने कहा कि पाकिस्तान में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जिनकी इस तरह की कोई वेबसाइट बनी हुई? Yes, we have researched about it. हमने रिसर्च किया था और हमने देखा था इंटरनेट पे हमें कुछ वेबसाइट्स ऐसी मिली थी कि जो कि साइकोथेरेपी से रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान में. यस, दे आर स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान. वो है ही पाकिस्तान में. इनफैक्ट उनका जो डोमेन है वो .pk.org करके ही है. तो लेकिन बट दे आर वेरी लिमिटेड एंड दे हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज इन अ वेरी लिमिटेड वे. मतलब उसमें इतनी ना तो कोई इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं एज वी आर प्रॉमिसिंग टू आवर ऑडियंस जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे. उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है. वो जस्ट यूँ है कि एक साइकियाट्रिस्ट से आपने कंसल्ट करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके.
तो वो इस तरह की हैं, और हम जो उनको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसमें हम एक ह्यूज एरिया को कोशिश कर रहे हैं कि हम करें, उसको कवर करें, और 1-to-1 जो कम्युनिकेशन होती है, जो क्योंकि जो पाकिस्तान का कल्चर है उसमें यूज़र और या ये कह लीजिए कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी मेंटल हालत के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा होता। बल्कि वी फील ऑफेंडेड कि अगर कोई कहे कि जी आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो तो आगे से तो शायद। जी हाँ, सो दैट इज़ वाई हमारा जो मेन वो है वो यही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें, एंड दोज वेबसाइट्स उनके पास इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का एज सच मुझे कोई उसमें एज सच दिखा नहीं, तो ये था सर। पर बट देयर आर वेबसाइट्स हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू नो कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो अगर आप शेयर कर दीजिएगा। Yes, अच्छा, sure. दूसरा आपने कहा कि जी AI चैटबॉट, यस डू यू थिंक जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत ही टची एंड पर्सन स्पेसिफिक फील्ड है और सेंसिटिव फील्ड है, तो क्या AI का चैटबॉट जो है वो मुझे, अगर मैं पेशेंट हूँ तो वो मुझे हेल्प कर सकता है? जस्ट इन केस ऑफ सर्चिंग आउट सम मेडिसिन्स, अगर Okay. आपको इस तरह की मेडिसिन, क्योंकि AI मशीन एक आपको उस तरह से आंसर नहीं कर रही थी। Exactly. अगेन आई हैव सर्च अबाउट इट, उसमें मैंने AI से ही कुछ इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन आई शुड टेक और आई शुड कंसल्ट विद सम साइकियाट्रिस्ट, तो मुझे जो चैटबॉट की तरफ से आंसर्स मिले थे वो इसी तरह के थे, येस यू मे प्रोसीड विद दिस टैबलेट और मेडिसिन, ऑल्सो यू कैन कंसल्ट विद योर डॉक्टर एंड देन यू करके इस तरह से मुझे आंसर मिले थे। ये जो दवाई है ना, जो इस साइकोलॉजी से रिलेटेड या साइकेट्रिक इश्यूज से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि ना तो आप विदाउट कंसल्टिंग प्रॉपर साइकेट्रिस्ट उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ना उसको बंद कर सकते हैं, ना उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसका इवन जो दवाई को अगर सपोज आप दे रहे हैं और आपको लगता है कि जी आप ठीक हो गए, उसके बाद अगर दवाई बंद करनी तो बंद नहीं कर सकते आप। उसको कम करने का एक ग्रेजुअल जो है वो टेपरिंग होती है कि आहिस्ता 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 करके कम करना होता है। और मीन वाइल आप वो जो आपके साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको ऑब्जर्व करता रहता है, अब इतनी कम कर दी तो अब क्या है बिहेवियर, अब इतनी कम कर दी तो अब क्या बिहेवियर। सो आई मीन ठीक है, फैंसी वर्ड है AI चैटबॉट, लेकिन मुझे इतना इसके अंदर उसका काम नज़र नहीं आता। यस, फॉर रिसर्च एंड अदर थिंग्स, यस वी कैन ऑलवेज डू। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स। जी सर, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स क्या यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, लाइक हमारे अपने ब्लॉगर्स होंगे, आर्टिकल राइटर्स होंगे, या हम वेब क्रॉलिंग करके और उनको एक जगह पे अक्यूमुलेट कर रहे होंगे? ये इम्पोर्टेंट। नो, वी हैव मेंशनड इट कि हम वी हैव सम इन्फ्लुएंसर्स इन टर्म्स ऑफ यूट्यूबर्स और इस तरह से जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन के हमने यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किए थे कि वी डू हैव टू कोलैबोरेट विद सम पीपल, क्योंकि रिसर्च एक बहुत इसका वास्ट वो है एस्पेक्ट है, तो उसमें कोलैबोरेटर्स के टर्म में इन्फ्लुएंसर्स ही होंगे, उन्हीं के ही ब्लॉग्स होंगे, उन्हीं के ही ऑथेंटिक आर्टिकल्स होंगे, या दोज हु आर वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट, उनका हमें अगर कोई मटेरियल मिलता है तो वी डू इम्प्लीमेंट इट, और ये हमें करना होगा अगर इन ऑर्डर टू मेक आवर वेबसाइट मोर अनऑथोराइज्ड और अनवेरीफाइड। ठीक है, क्योंकि आजकल आप कुछ भी लिखेंगे गूगल पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बट नॉट नेसेसरीली एवरी आर्टिकल इज राइट वन। ठीक है, और ये चूँकि एक ह्यूमन मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड है, तो इसमें कोई भी चीज़ इस तरह की चली जाए जो कि चैलेंज हो सकती हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स निकल आए, तो उसको जो है वो, तो हमारे जो भी आर्टिकल्स या जो इसमें ब्लॉग्स होंगे वो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड ब्लॉगर्स होंगे या वेरीफाइड आपके आर्टिकल्स होंगे कि वो बाकायदा से एक रिसर्च वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से उठ के आपके पास आ रहे हैं या उन बंदों से आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और है कि इसमें
आपको जो जैसे आपने इन्फ्लुएंसर कहा, तो इन्फ्लुएंसर तो खैर अपनी जगह पर, लेकिन हमें इसमें जो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, कुछ प्रोफेशनल्स को हमें ऑन बोर्ड इसमें लेना पड़ेगा। अदरवाइज हम सिर्फ गूगल सर्च करते करते, जो रिसर्च आपने की है उसको करते करते हम एक परफेक्ट एप्लीकेशन नहीं बना सकेंगे। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, एक साइकियाट्रिस्ट होगा, जो कि आपको गाइड करता जाएगा कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ करें, इसको इस तरह से लेके जाएं। जैसे आपने ऑनलाइन असेसमेंट की बात की, ऑनलाइन थेरेपी की बात की, फिर ऑनलाइन थेरेपी में मुझे बहुत एक चीज़ अच्छी ये भी लगी कि इमरजेंसी कॉल। अब इमरजेंसी कॉल सब, और ये कभी भी होता है इस प्रॉब्लम में, इस बीमारी में कभी भी एक बंदा फील करता है कि वो SOS प्रेस कर दे और वो कहे कि जी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। उस वक्त उसको किसी की ज़रूरत होती है कि वो उसको अटेंड करे, उससे बात करे, उसको सुने, या उसको अगर तो वो मेडिसिन पे है तो उसके फिर वो मेडिसिन। अच्छा, फिर कुड यू जस्ट एक्सप्लेन के साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट सेम है या फ़र्क है? साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, नो, आई थिंक दोनों डिफरेंट ही हैं। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, यानी ग्रेजुएशन या इस तरह की कोई चीज़ मतलब कर रहे होते हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट की उसमें होते हैं, और जब बन जाते हैं तो साइकियाट्रिस्ट कहलाते हैं। आप बताएं। सो ये दोनों चीज़ मेरे हिसाब से ये डिफरेंट हैं। जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो शायद ये जो मेंटल हेल्थ, जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो जो मेंटल हेल्थ वगैरह चीज़ होती हैं वो इस पे फोकस करता है, और साइकोलॉजी होती है वो तो एक आम इंसान की वो नॉर्मल ज़िंदगी होती है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक गिलास का पानी रख दें यहाँ पे, तो वो बंदे को उठाने के तरीका जो होगा उस पर भी साइकोलॉजी जो होगी, उस जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो देख के उसको पता कर लेता है कि ये गिलास को उठाने के तरीके से कि बंदे का बिहेवियर वगैरह। अच्छा, चलें बेसिक डेफिनेशन में फ़र्क है, ठीक है, फ़र्क है। और ये आपको इतना ये ना आप बिलीव करो कि ये जो आप काम अगर करने जा रहे हो ना, ये इतना बड़ा काम है इंसानियत की खिदमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर लिहाज से अगर हम इसको बहुत अच्छे से डेवलप करके और रन कर सकें। साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो मेडिसिन के फील्ड से आता है, ठीक है, एंड एंड ऑफ डे ही ट्रीट्स यू थ्रू मेडिसिन एज अ पेशेंट। तो वो भी पेशेंट भी होता है, वो भी पेशेंट वो होता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी काउंसलिंग के थ्रू आपको काम डाउन करता है, वो काउंसलिंग के थ्रू आपके इश्यूज सुनता है, वो एक घंटा आपको देता है, 1 घंटा आप बात करो उनसे, बस बात करो। वो आपकी बातों में, आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ, आपकी हल्की हल्की हरकत के साथ जो है वो आपको असेस करता रहता है कि ये कैसे बिहेव करता है, किस सवाल पे कैसे बिहेव करता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कैसे बिहेव करता है। देन वो आपकी थेरेपी एंड आपकी कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है। जबकि साइकियाट्रिस्ट वो होता है जो पेशेंट इस लेवल तक पहुंच गया हो कि अब उसको दवाई की ज़रूरत है, तो देन साइकियाट्रिस्ट गो बिकॉज इट इज़ अ केमिकल, सो देन इट इंटरेक्ट्स विथ योर बॉडी केमिकल्स कि कौन से फ्लूइड्स, कौन से एंजाइम्स, कौन से चीज़ों को कम करना है, किन को ज़्यादा करना है, कहाँ पे आपको नींद की दवाई देनी है, कहाँ पे आपको सुलाना है, कहीं पे आपको आराम चाहिए। डिफरेंट जो है वो उसके एंगल्स होते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, समटाइम्स द पेशेंट इज़ ट्रीटेड बाय बोथ। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट ये समझता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत है, वो आपको रेफ़र करता है कि आप इनसे भी अपॉइंटमेंट ले लें। समटाइम्स साइकियाट्रिस्ट देखता है कि अच्छा मैं दवाई दे करके फ़िलहाल तो इसको संभाल लूँ, लेकिन इसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि ये इसको लग रहा है कि जी दुनिया ख़त्म हो गई है, अब दुनिया ख़त्म हो गई है, तो उसको हम
काउंसलिंग के लिए समझाएंगे कि नहीं अभी आगे बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दी, तो ये फर्क आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वाली एप्लीकेशन में साइकोलॉजिस्ट का पूरा एक अलग स्ट्रीम है और साइकियाट्रिस्ट का अलग स्ट्रीम है। इसी तरह से जब आप ऑन बोर्ड ला रहे होंगे लोगों को इसमें, तो ऑन बोर्ड लाने में भी जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो आप अलग ऑन बोर्ड ला रहे होंगे। ऐसा नहीं कि एक साइकोलॉजिस्ट को हमने बिठा करके हमने कहा कि जी हमारा काम हो गया, नहीं, साइकियाट्रिस्ट अलग होगा, ठीक है। और इसमें आपको प्रॉपर डेवलपमेंट सही करने से आपको कम से कम दो लोगों की तो कम से कम ज़रूरत है, एक साइकोलॉजिस्ट की, एक साइकियाट्रिस्ट की, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट तो मैं आपको दे दूंगा और साइकियाट्रिस्ट भी हम बात कर लेंगे कि जी उसको कैसे करना है। लेकिन आई थिंक व्हाट आई शुड अप्रिशिएट इज आई अप्रिशिएटेड कि जो इनिशियल रिसर्च वर्क है, एंड यू गाइस आर वेरी क्लियर इन योर ऑब्जेक्टिव क्या करने क्या जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, इस प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज क्या हो? लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी एक्सेस करेगा तो वो क्या इंग्लिश में फॉर्म्स वगैरह फिल करेगा वो चीज़? यस अगर हम पाकिस्तान की टारगेट ऑडियंस करें तो कितने लोग इस चीज़ को कर रहे हैं? ये मेरा अपना ऐसे ही मेरे ज़हन में अभी क्वेश्चन ही है वेरी गुड कि भाई, और पता नहीं कि अभी मेरे ज़हन में मेरा ख्याल है कि एक साइकियाट्रिस्ट को जो कोई अप्रोच करता है, मुझे फॉर्म फिल करना एक एक्टिविटी लगेगा। ये मेरा अपना थिंकिंग है, शायद में भी आप लोग इससे डिसएग्री करें। व्हाई नॉट कि क्वेश्चंस, ऑडियो क्वेश्चंस पे रजिस्टर्ड किया वी कैन कि मतलब आप उसकी कम से कम हिस्ट्री जो उससे सवाल करना चाह रहे हैं, Yes. ताकि देखिए अक्सर लोग लिखते वक्त डरते हैं कुछ चीज़ें। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि कोई अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने हमने एक इंटरनेशनल ऐप को भी रिसर्च किया था, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बाद दफ़ा आप लिख कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक डेटा प्रोवाइड करते हैं। और आजकल जो लोगों को होता है कि फर्स्ट टाइम एक ऐप पर जाना, उस पर इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन देना, तो अगर वो क्या हम ऑडियो बेस भी कर सकते हैं, फर्स्ट वो इंटरेक्ट करे इस ऐप पे बेसिक इंफॉर्मेशन देकर चॉइस दे सकते हैं। मेरे ख्याल में हम अच्छा आइडिया है कि हम ऑडियो पे चले जाएं कि भाई इनिशियली आप क्वेश्चन का आंसर ऑडियो में देंगे, तो वो ऑडियो को क्लिक करके और अपना आंसर रिकॉर्ड करके स्टॉप करके वो आपके डेटाबेस में चला गया। क्वेश्चन का आंसर आप राइटिंग में देंगे, तो ये है, ठीक है। राइटिंग के लिए इनिशियली हमें शायद 2 लैंग्वेजेस यूज़ करनी चाहिए कि अगर वो उर्दू सेलेक्ट करता है तो उर्दू सेलेक्ट कर ले, अगर इंग्लिश सेलेक्ट करता है तो इंग्लिश। और स्पीच टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं हम। स्पीच टू टेक्स्ट बल्कि ज़्यादा अच्छा तभी उसने बोला, क्योंकि उसको अपना मसला हल कर, खास तौर पे जहाँ आपके क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने उस ऐप में कुछ चीज़ें भी जहाँ टाइप आपने वो ऐप देखी? बेटर हेल्प, यस सर, पूरी डाउनलोड की? पूरी डाउनलोड की, क्वेश्चन भी सॉल्व किया, रिकॉर्ड भी किया? रिकॉर्ड नहीं किया, वो सर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे वो पेड मांग रहा था, हाँ, कार्ड, तो वो मैंने आपको कहा था तो वो हाथ से छोड़ दिया। नहीं, उसको आप कंप्लीट करेंगी ठीक, ताकि आपको एक ये वन ऑफ दी सक्सेसफुल ऐप है यस सर, जो कि यूएस में यूज़ होती है, ठीक है। और ये मुझे वही बात है, मैं जब यूएस में था तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट मैं आपको दे दूँगा, तो वो मेरी बेटी ही है। तो उस शी हैज़ वर्क विद एडल्ट्स, नाउ शी इज़ वर्किंग विद चिल्ड्रेन। और तो उस मैंने कहा कि यू टेल मी व्हाट इज़ digitally available in your field and what do you require। 2-3 चीज़ें फिर उन्होंने डिस्कस की, फिर उन्होंने कहा कि ये एक ऐप है जो कि यूएस में जनरली ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन है उसमें। तो हम इसको पे भी करेंगे, पे करके, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि
ज़रूरी नहीं है कि हम कॉपी करें उसको, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव आइडिया। When I left, जब मैंने उसको छोड़ दिया था क्वेश्चनियर सॉल्व करने के बाद, the next day I got a notification, और उसमें ये था कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे या आपने वो प्लान फिल नहीं किया है तो वी हैव सम डिस्काउंट ऑफर करके फिर उन्होंने क्वेश्चनियर सॉल्व करवाया। वो दोबारा सॉल्व किया जिसमें कि ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयड और ये सब, तो वहाँ पे मैंने हर जगह अनएम्प्लॉयड और इस तरह से करके उसको फिल कर दिया। तो वो एक डिस्काउंट जो पहले वो $65 मांग रहे थे उसको उन्होंने कट डाउन करके $40, लेकिन अगेन वही कि पहले इसको पे करें उसके बाद ही फिर वो आगे जाने के लिए तो कह रहा है। वो आप पे कर लेंगे उसको। ठीक है। दूसरा ब्लॉग्स का भी बात हो रही थी, मैं अगेन बोल रहा तो इतना टेक्स्ट रीड करना एक साइकोलॉजी के मरीज को मेरा ख्याल है जो भी है अच्छा, यहाँ पे मैं सोनिया अपना फीडबैक दूंगा थोड़ा सा। देखिए, ब्लॉग वाला आइडिया बहुत अच्छा है। दो उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस में प्रोफेशनल्स भी कहे हैं, स्टूडेंट्स भी कहे हैं, पेशेंट्स भी। बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं एंड साइकोलॉजी में मैं आपको ये बताऊं कि जो भी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि रोज़ एक नई रिसर्च आ रही होती है, और वो अगर वो रिसर्च पे नहीं चलेंगे तो वो दे कांट कीप अप विद दी लेटेस्ट टेक्निक्स क्या आती हैं, लेटेस्ट वो सारी चीज़ें क्या आती हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर होता है। बल्कि वो सॉरी, अब ये मेरी बेटी ने एक मुझे वो पकड़ा दिया कि पापा ये मुझे ना असाइनमेंट सबमिट करना है, तो जो है ना ये पूरा आर्टिकल पढ़ो और इसमें से क्वेश्चन आंसर के जवाब वो मैंने पूरा बैठ के पढ़ा। तो वो बेसिकली कह रही थी मेरे पास टाइपिंग का टाइम नहीं है, तो मैं वो काफ़ी बिजी अक्सर रहती है, तो वो फिर मैंने उसको वो करते करके मैंने उसको बना के दे दिया। मैंने कहा अब चूँकि फील्ड तुम्हारी है तो तुम ही देखो कि भाई मैंने जो लिखा है उसको करेक्ट कर लो, बाकी मेजॉरिटी जो बेसिक चीज़ें वो मैंने कर दी, आपको लिख के दे दी। तो इनका लिखना पढ़ना बहुत होता है, तो होता है। बाकी पेशेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन वो पेशेंट पढ़ते हैं नेचुरली जो स्टेबल सिचुएशन में होते हैं, और उनको होता है कि देखूं कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो वो ब्लॉग्स इसलिए ज़रूरी है। लेकिन भाई जैसे मैं अगेन वही करूँगा, मतलब मैं व्लॉग हूँ, वो ऑडियो मतलब रीड कर रहा है, आप ही का टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ, बहुत बेहतर हो जाएगा उसके लिए, वो रीड नहीं करना चाहता लेकिन सुनना चाहता है। हाँ, ये आजकल बुक रीडिंग वाले जैसे एप्लीकेशंस आती हैं, ऐसी कोई एपीआई यूज करें जिसमें बुक रीडिंग, हाँ वो है आर्टिकल रीडिंग हो। ठीक है, चलें, कीप इट अप, थैंक यू एंड वेरी वेल डन, मुझे अच्छा लगा। आप इधर आ जाएं मेरे प्लेस के साथ। देखो वीडियो में आ रहा है, वीडियो में तो नहीं आ रहा है, बस ऊपर है। Thank you, sir. Thank you.